Good morning and Assalamu alaikum, grade second. Today I am here with your social studies book because I'm going to teach you social studies today, and the lesson number is 17 at page number 94. So open up page number 94 and take out lesson number 17, that is about directions and time. Yesterday I shared some videos with you about direction and time, and I hope that you have watched those videos. देखी आप लोगों ने? अगर देखी हैं तो आपको definitely पता होगा there are how many directions. जी, can anybody tell me? Yes, Ali Mushtaba, Marjan, Abdullah, Sardar Abdullah, beta, just tell me there are how many directions. Yes, I know that you all know that there are four directions. ठीक है? And the names are east, west, north, and south. So what is this? Can anybody tell me what is this at page number 94? हाँ जी, it's a compass, and a compass tells us about the directions. ठीक है, डायरेक्शन को उर्दू में कहते हैं सिमत. चार तरह की सिमत होती है. एक देखिए, जैसे हमारे एक फ्रंट पे, एक हमारे सामने, एक बैक है, एक राइट हैंड एंड लेफ्ट. चार तरफ होती है ना, चार सिमतें होती हैं. इसी तरह उनको हम कहते हैं, ये हम देखते हैं अपनी, हमें डायरेक्शंस का पता चलता है कंपस से. ठीक है, सो दिस इज कंपस एंड इट टेल्स अस अबाउट द टाइम. नाउ लुक एट दिस पेज. व्हाट इज दिस? हाँ जी, सो हेयर इट इज़ रिटन लाइक हेयर इज साराज नेबरहुड. So where is Sarah? I think this is Sarah's house and she is standing in the window, है ना? And she is looking out. Here is Sarah, and this is Sarah's home. So what is this? It's a playground. And what is this? It seems to me like a school. I am sure that I am right. Like this, it seems to be school. The video is getting blurred. I don't know why. Let me focus on it. Hanji, it's clear now. हाँ जी, it seems to me I think it's a school. ठीक है, because there are swings, there is a playground, and it looks like a school to me. Now what is this? It's a fruit shop. ठीक है, a vendor is standing there and there are some fruits. And what is this? It's a tree. Do you know which tree is this? कौन बता सकता है मुझे? The name of this tree, it's a banyan tree. अगर आप TIP आए या अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन पे हरिपुर में गए हैं तो देर आर सो मैनी बैनियन ट्रीज़. बैनियन ट्रीज़ क्या होते हैं? बहुत टॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया पे फैले होते हैं. तो इट इज़ अ बैनियन ट्री. लेकिन ये हमें बता रहे क्या है, हमने देखना क्या है? आई थिंक लेट मी मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. अब यहाँ इन्होंने हमें, इट्स योर होम टास्क. So beta, you have to do it by yourself. I'm not going to help you. I'm just going to guide you that how you are going to solve it. So here it tells is fill in the blanks with the correct words. And where are the correct words? The words are given here. Here is the word bank. So you have to use these words like behind, right, left, and in front of. अब वो क्या कह रहे हैं? The first one is there is a banyan tree dash Sarah's house. So where is the banyan tree? Banyan tree is behind the Sarah's house, right, left, or in front of. Do it yourself. I'm not going to help you. I told you like this is the Sarah's home and this is banyan tree. So do it by yourself. What do you think? कौन सा word इसमें? Which is the most appropriate word? हाँ जी. The next one. Her school is dash her house. Where is the school? Yes, it's school. And where is the house? School is in front of. Sorry. It is in front of her house. It is in the left. It is at the left or right or behind. Do it by yourself. The next one. The park is to the dash of her house. Where is the park? Here it is. Yes. Where is the park? It is situated at the right or at the left. I don't know. Do it by yourself. The fruit shop is to the dash of her house. Where is the? It is located at right, left, or in front of or behind. Do it by yourself because everything is given here. Even the word bank is given. Picture is here. So it's so easy. It's your home task. Do it by yourself. सबने बहुत अच्छे तरीके से करना है. Let me move to the next page at page number 95. And we are going to learn about directions. So direction means simt. So how many directions are there?
there are 4 direction, and the names are E shows, E stands for east, west, north and south. There are 4 directions. So what this girl is doing, I think she is doing the same practical जो आप लोगों के साथ कल मैंने वीडियो में शेयर किया है, बिल्कुल वही है ना. And what is this picture is about? There is a sun, a tree, a sun is rising and sun is setting, and here are the direction. These arrows are showing the directions. And what is the next? I think it's sun or it's earth. Yes, I think it's earth. But earth is in green color. And it seems to me, I think it's sun. If I'm not wrong, let me check the next one. Who is this? I think it's a student like you, and he is busy in eating. कुछ खाने में मसरूफ है. चले जी, let's do the reading. Let's start it. Put your fingers at the first line and be with me. Listen it carefully. So I'm going to start. ठीक है? We have other ways of saying where a place is. If you stand facing the rising sun with your hands stretched, you are facing the east. वो कह रहे हैं कि हमारे पास और तरीके होते हैं, हम जैसे बता देते हैं कि जैसे वी हैव अदर वेज ऑफ सेइंग वेयर अ प्लेस इज. अगर जैसे हम बता देंगे वेयर द प्लेस इज, हम बता देंगे इट इज़ एट द फ्रूट शॉप इज़ लोकेटेड एट द राइट ऑफ हर साराज होम और द लेफ्ट और इन फ्रंट और बिहाइंड. हम इस तरीके से बता देते हैं. वी डू नॉट यूज़ द डायरेक्शंस. ठीक है. अगर हम इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, जब सूरज राइजिंग सन, जब सूरज निकल रहा होता है, जब सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सक्यूज़ मी, जिस वक्त सन को अगर आप फेस करें यानी आपके सामने हो, एंड यू स्ट्रेच योर हैंड्स, अपने हाथों को फैला के खड़े होंगे, तो यू आर फेसिंग द ईस्ट. आप किसकी तरफ देख रहे हैं? ईस्ट की तरफ. लाइक दिस गर्ल, शी इज़ डूइंग द सेम थिंग. और इसका जिस साइड पे आगे वाली साइड क्या है? दिस इज़ ईस्ट. excuse me, sorry. So at your behind, what is in your at your behind is the west. आपके पीछे, फ्रंट पे तो आ गया ईस्ट, आपके पीछे क्या है? दैट इज वेस्ट. ईस्ट, वेस्ट. Your left hand points to the north. Your left hand, like this hand, points to the north. So here is the north. उसकी opposite क्या होगा? North and south. Your right hand points towards the south. यहाँ पर south. So it means here is east, west, north and south. ठीक है. ऐसे आप लोगों ने खुद भी आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिकल करें. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड द 4 डायरेक्शन. ये जो हमारे पास मशरिक, मगरिब, ईस्ट को कहते हैं मशरिक, वेस्ट को कहते हैं मगरिब, मशरिक, मगरिब, शुमाल, शुमाल को कहते हैं आई थिंक नॉर्थ. शुमाल, हाँ जी, नॉर्थ. ये शुमाल और जनूब, साउथ. ठीक है. सो इनको उर्दू में इनके ये नाम है, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो ये देयर आर 4 डायरेक्शन. इस तरह 4 डायरेक्शंस बनती हैं, 4 सिमतें बनती हैं. टुडे वी यूज़ अ कंपस टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस. वो कहते हैं अब हम कंपस को यूज़ करेंगे डायरेक्शंस को मालूम करने के लिए. अगर आप लोगों की गाड़ी में, अगर आप जिनके पास वो लगा होता है लोकेशन, अगर आप ऑन करें तो उस पर एक कंपस सा बना हुआ आता है जो आपको डायरेक्शंस शो कर रहा होता है. ठीक है. तो वहाँ वो क्या कह रहे हैं कि टुडे वी यूज़ अ कंपस टू फाइंड आउट डायरेक्शंस. अब जैसे रोड्स पे, अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर आर रोड्स. हम वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ पे बोर्ड, साइन बोर्ड लगे होते हैं, आपको सब रास्ते का पता चल जाता है. लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इन एरोप्लेन, तो हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डायरेक्शन कि आप किस साइड पे जा रहे हैं? वहाँ पे तो रोड्स नहीं है. ठीक है. इसी तरह अगर आप पानी में सफ़र करें, जैसे सेलर्स जो हैं वो कश्तियाँ जो चला रहे होते हैं, अब उनको कैसे पता चलता है? वहाँ तो रोड्स नहीं है, कैसे पता चलेगा? दे विल कम टू नो अबाउट द डायरेक्शन थ्रू द डायरेक्शन इन विच वे दे हैव टू हेड. किस रास्ते की तरफ उन्हें जाना है, तो वो उनको पता चलेगा डायरेक्शन से. तो सेलर्स ऑन शिप्स, जो कश्तियों में सेलर्स, जो कश्ती चलाने वाले होते हैं, मल्लाह, उनको कहते हैं सेलर्स. ऑन शिप यूज़ अ कंपस. वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपस की डायरेक्शन की मदद से उनको पता चलता है कि हमने किस तरफ जाना है. द सन सीम्स टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. सन जो है वो हमें लगता है कि वो अपनी पोजीशन वक्त के साथ साथ चेंज कर रहा होता है. जैसे क्या होता है? इन द मॉर्निंग द सन इज सीन इन द ईस्ट. सन किस साइड से निकलता है? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सूरज निकलता है
ईस्ट की जानिब से। ये देखें, द कंपस इज शोइंग इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स सन, और ये बता रहा है इट्स द ईस्ट। ठीक है, सन जब निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। हाँ जी, पूरे दिन में जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, तो वो कर घूम घूम के पूरा सन जो है वो घूम के यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है इट इज़ द सनसेट टाइम। In the morning, the sun is seen in the east. Then by noon, we can see the sun overhead. लेकिन आप जब देख दोपहर, जैसे सूरज निकलता है वो तो ईस्ट से निकलता है, लेकिन दोपहर में वो जब बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है, तो दैट इज़ नॉर्थ। वो नॉर्थ वाली साइड होती है, हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है। इन द इवनिंग द सन इज़ टू द वेस्ट। कहाँ है, शाम के वक्त सन किधर आ जाता है, टू द वेस्ट। वो वेस्ट की जानिब आ जाता है और हमें लगता है अंधेरा, क्योंकि सूरज जो है वो हमें लगता है सूरज गरूब हो गया है और फिर अंधेरा होने शुरू हो जाता है। लेटर द सन सेट्स एंड वी डू नॉट सी इट एट ऑल टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके बाद सूरज गरूब हो जाता है और वो हमें पूरी रात जो है वो नज़र नहीं आता। वो कब नज़र आता है, नेक्स्ट डे जब सूरज निकलता है, सनराइज़ के साथ हमें नज़र आता है। डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे। क्या सूरज एक ही वक्त पे निकलता और गरूब एक ही वक्त पे होता है, रोज़ाना ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आवर डे इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारे दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। द टाइम व्हेन वी हैव सनलाइट इज़ कॉल्ड एज डे टाइम। जब हमें सूरज की रोशनी मिलती है उसको हम कहते हैं सुबह का वक्त, डे टाइम। द टाइम आफ्टर सनसेट, जब सूरज गरूब हो जाता है, व्हेन वी डू नॉट हैव लाइट, जब रोशनी नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड नाइट टाइम। ये देखिए अंधेरा हो जाता है। सन तो अपनी जगह पे रहता है, सन तो मूव नहीं करता। अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, अपनी जो है ऑर्बिट के में सन अपने एक्सिस पे जब मूव कर रही है, तो उसकी वजह से डेज एंड नाइट बनते हैं। A day and a night together is of 24 hours. Yes, I have already taught you about the time, and we came to know about, I told you that there are how many hours in a day? So there are 24 hours in a day. वी टेल टाइम बाय अ क्लॉक। हम किसके ज़रिए हमें पता चलता है, हम सूरज को देख के तो नहीं बता रहे थे 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। हमें तो क्लॉक से टाइम का पता चलता है। लेकिन जैसे वक्त पहले ज़माने में जब क्लॉक नहीं थी, तो लोग कैसे उनको पता चलता था टाइम का, सूरज के साथ। वो सूरज के साथ हिसाब लगाते थे कि अब कौन सा टाइम हो गया है, अब ये वाला टाइम होगा, और उनके हिसाब। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हमारे पास तो क्लॉक्स हैं, हमें टाइम्स का क्या, मिनट्स का क्या, सेकेंड्स का सब कुछ पता चल जाता है। So Amir goes to school at 8. Who is this? He's Amir, and he's telling us about his routine. वो बता रहा है कि Amir goes to school at 8 o'clock in the morning. Amir सुबह 8 बजे जो है वो सुबह के वक्त स्कूल जाता है। Amir and his friends have a lunch break at 12 noon. Amir और उसके दोस्तों को लंच ब्रेक कितने बजे मिल जाती है? 12 बजे दोपहर, 12 noon. Amir has a snack at 3 o'clock in the afternoon. दोपहर में कितने बजे वो स्नैक्स लेता है? 3 o'clock. Amir goes to play at 5 o'clock in the evening. अब देखिए यहाँ पे टाइम्स उन्होंने हमें बता दिया, टाइम बता दिया है कि ये कितने बजे क्या क्या। यहाँ पे देखिए साथ साथ उसने दिन का भी बता दिया। दिस इज़ मॉर्निंग टाइम, नून दोपहर, आफ्टरनून शाम, एंड देन आफ्टरनून दोपहर होती है, नून जो होते हैं 12 बजे, मतलब बिल्कुल जिसका सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है, ओवर हेड ऑन द, हमारे सर पे तकरीबन होता है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर जब फुल जो है सन बिल्कुल अच्छे क्लियरली नज़र आ रहा होता है, उसे दोपहर सपहर आई थिंक कहते हैं। और फिर आ जाती है आफ्टरनून दोपहर, एंड देन 5 o'clock इन द इवनिंग, फिर शाम का हो जाती है। ठीक है, so this was all about your direction and the time. So this is your home task that you have to fill these blanks on the book. Fine. Okay, I'll see you tomorrow. Just take very good care of yourself, do the reading, and I think all of you are very well aware of the reading rules, that it must be loud and clear. Read it twice, and inshallah I'll join you tomorrow. Take very good care of yourself, and Allah Hafiz.